You born and raised here? No, actually, I'm from Latvia. Latvia. Yeah, do you know? Riga, Latvia. Yes. So, We how just moved here like. how come from Latvia to Croatia? We You like like the sea? Yeah, we like the sea. Okay. People are friendly. People are friendly here. Yes, very friendly, and safe. Very safe. Safe, yes. Of course. Are you here, the artist? Yes. Down. Give me some of the paintings for the wall I would like to buy. Okay. Which one do you have? This, like it outside, but without the frame. Here. Like this. Without. Okay, yeah, I can give you cheaper price without the front. Where some which are? Which you can give me. You choose. I can give you. And the same, these cards you put in the frame? No. The other is with Yeah. this. This is not there. You want this one? This is how much you can give. I can do for 5. This without the frame. Yeah. And this. Also 5. It's just there. It's a different, yeah. And these are others. These are postcards. These are postcards. 150 for 1 and 3 for 4. 5 for 6. This I can also put in the frame, no? Yeah, of course. I just don't. I'm not putting it because people will know that I'm putting it. You know. So I choose from here. Yeah, Some of the easy. postcards. Easy. Rovinj is the capital of Istria. Romania. Not really. It's just a more known town now. You born and raised here? No, actually, I'm from Latvia. Latvia. Yeah, do you know? Riga, Latvia. Yes. So, We just moved here like. how come from Latvia to Croatia? We You like like the sea? Yeah, we like the sea. Okay. People are friendly. People are friendly here. Yes, very friendly, and safe. Very safe. Safe, yes. Of course. क्रोशिया के अंदर जो मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पर टूरिस्ट कंट्री ज़्यादा है, टूरिस्ट सिटीज़ है। मतलब यहाँ जॉब के और काम करने की जॉब वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है और इमिग्रेंट्स भी बहुत कम देखें हॉस्टल, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में, शॉप्स में। तो ज़्यादातर जो है क्रोशियन लोग हैं और यहीं के जो लोकल्स हैं वही यहाँ पर जॉब करते हैं ज़्यादातर जॉब मार्केट में। तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमी इतनी हाई नहीं है और हाई क्लास जॉब्स नहीं है क्रोशिया के अंदर। बाकी ये है कि टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं और क्या कहते हैं इसको, सी साइड, बीच साइड बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने जो है अब तक 2 दिन के टूर में ये नोटिस किया। तो ये सिटी सेंटर है अभी और ये कल तो मैं पूला शहर में था, पूला भी सी साइड एरिया है। आज मैं हूँ रोविनियो। तो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं रोविंज, लेकिन यहाँ के लोग और इटालिया के लोग पढ़ते हैं रोविनियो। तो खैर रोविनियो ही बोलेंगे उसको। तो ये एक बहुत बड़ा शहर है मेरे हिसाब से, जो टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा है और बहुत रिच भी है। टूरिस्ट पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं और इसको कहते हैं कि ये क्रोशिया का इस साइड पर जो है सबसे खूबसूरत सिटी है। Buongiorno. Questo scusa per grattare per cosa? Sì, per grattare todo. Can I speak in Yes. English? Because Okay. my Italian is very bad. Oh, no problem, English. You can grate everything. Like you can start with any kind of nuts, chocolate. This is nuts and, chocolate. And how to use this? I show you how to use. So this is the very hard nuts, nutmeg. Nut. So you just do slowly over it. Don't apply pressure. And then in a short time, you have Okay, like this. smell. Smell? Purple nose. This is the aroma you get when you do like a fish coffee. No? Aroma, beautiful. Same with simple chocolate anyhow. Also for the For onion, Parmesan, I go and also on my presentation through, so you know all. your presentation. So if I have pasta at home, I leave it at the table so people can. ज़ाती तौर पे जो मुझे पसंद आया है वो और इटली से भी ज़्यादा क्रोशिया पसंद आ रहा है। अच्छा, क्रोशिया का ये जो शहर है तो ये बाज़ इटली के शहरों से भी बड़ा शहर है। तो अभी इसकी गलियों में मैं गुम हूँ और इसकी गलियों में जा रहा हूँ, राइट लेफ़्ट। तो ये है सेंट्रो स्टोरिको हिस्टोरिक सेंटर। अच्छा, यहाँ पर इसके कुछ शो पीस भी लगे हैं और
पेंटिंग्स वगैरह भी लगी हैं। तो जिस शहर में भी हम मौजूद हैं, ये शहर है रोविनियो। तो ये इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ जो है झलक है, इसका अक्स है। तो किस तरह से ये शहर दिखता है, समंदर के साथ है। और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्च है जो कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर से मैं अभी होकर भी आया हूँ। और इसकी गलियाँ पेंटिंग में जो बनी हुई हैं, ऐसी ही इसकी गलियाँ हैं। तो ऐसा लगता है कि वाकई जो है हम किसी पेंटिंग में चल रहे हैं। तो बाकायदा इसकी जो पेंटिंग हैंडमेड पेंटिंग है, 50 यूरो इसकी कीमत है। तो ये इस तरह से दिखता है शाम में, ये इसका पानोरामिक व्यू और बहुत खूबसूरत सनसेट नज़र आता है। तो इस तरह का शहर सेंट्रल इटली में है, जहाँ अभी तक तो मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर ये वाला शहर बहुत पसंद आया, क्रोशिया का। तो तभी मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, टूरिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से आए हैं। तो इसकी जो पतली पतली गलियाँ हैं और जो इनका आर्किटेक्चर स्टाइल है और कलरफुल जो घर बने हुए हैं, तो ये ख़ुसूसन जो है अक्स पेश करता है रिपब्लिक ऑफ वेनिस। अच्छा, वेनिस में भी जो है ऐसी गलियाँ हैं पतली। और कहते हैं कि यहाँ का जो पत्थर है इस्त्रिया का, स्टोन ऑफ इस्त्रिया, जिसकी जगह ये गलियों में मैं हूँ, तो ये सदियों पुराने पत्थर, सदियों पुराना स्ट्रक्चर है जो गलियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ का इस इलाके का पत्थर बहुत मशहूर है। और इसके अलावा जो इसके पत्थर हैं, ये जो इस्त्रियन स्टोन कहते हैं कि इस्त्रियन स्टोन जो है इस पूरी एड्रियाटिक कोस्ट के ऊपर बहुत मशहूर और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऐसा पत्थर कहीं भी नहीं मिलता। और इसमें हमें लग रहा है, देखें पत्थरों के अंदर एक बिल्कुल चिकनाहट हो गई है, क्योंकि ये सदियों पुराने बने हुए, 300-400 साल पहले जो गलियाँ बनाई थी। तो रिपब्लिक ऑफ वेनिस के टाइम पर वेनिस के जो गवर्नेंस थी, वेनिस की जो गवर्नमेंट थी, तब के बने हुए ये। अच्छा, बाकी ये तो इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया का झंडा लगा हुआ है। तो ये इससे ये पता चलता है कि मल्टी कल्चरल सिटी है, दुनिया भर से इसलिए लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और इसकी जो है गलियाँ इतनी पक्की अब हो गई हैं और इतनी कंज्यूम हो गई हैं कि ये अभी भी जो है 1000 साल, 800 साल तक मज़ीद चल सकती हैं, चलेंगी ये अंदाज़न तकरीबन। तो ये पियाज़ा, अभी ये पियाज़ा और इन गलियों में से मैं जा रहा हूँ, बस जिस मेन स्ट्रीट के साथ लेफ़्ट राइट आगे पीछे जो है पतली पतली गलियाँ हैं। तो ये बनाया है और सजाया है, डेवलप जो हुआ है रिपब्लिक ऑफ वेनिस के टाइम पर हुआ है। बाकी वेनिस से पहले रोमन एम्पायर गुजरा यहाँ से, लेकिन रोमियो से भी पहले 4000 साल पुरानी तारीख़ है यहाँ। 4000 साल पहले तक लोग यहाँ रहते थे। अच्छा, बाकी फ्रांस का झंडा लगा हुआ है, इटली का भी लगा हुआ है। तो जिस भी गली से मैं जा रहा हूँ, वो गली, अभी इस गली के अंदर ज़रा एंटर होते हैं, तो जिस गली के अंदर भी मैं जा रहा हूँ वो गली एक जो है अलग अपना सीन और सीनरी पेश कर रही है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता था, इम्पोर्टेंट पोर्ट होती थी, जहाँ से बहुत लॉजिस्टिक्स का सामान वेनिस लाता था और भेजता था, वेनिस का शहर। तो बाकी अब तो ये सिर्फ टूरिस्ट सिटी है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो इटालियन शहर हैं ना, तो उनसे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, और माहौल भी अच्छा है क्रोशिया का। और जिस तरह बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट इटली में नज़र आते हैं, वो मुझे 2 दिनों के अंदर अभी क्रोशिया के अंदर नज़र नहीं आए। और जो टूरिस्ट स्कैम वगैरह जो करते हैं इटली में बहुत ज़्यादा, अफ्रीकी और काले अरबी दूसरे, तो उस तरह का सिस्टम, उस तरह का चक्कर यहाँ नज़र नहीं आया। यहाँ साफ़ सुथरा माहौल है, टूरिस्ट हैं, क्रोशियन लोग हैं। बाकी ये है कि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, या इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी और बहुत कोई बड़ी रिसर्च सेंटर, कॉलेजेस नहीं हैं। तो जिसकी वजह से जो है क्रोशिया के लोग यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फिर इटली में जाते हैं जॉब काम के लिए। तो ये भी एक गली शुरू हो रही है, इसमें जाकर देखता हूँ मैं। बस अभी मैं गलियों में जा रहा हूँ और इस शहर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ थोड़ा। आज कल हमने किया था, वो शहर था पूला, वो भी समंदर सी साइड के पास था, बीच के पास। आज ये है रोविनियो शहर, ये भी बीच के पास है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा शहर ये है और ज़्यादा हिस्टोरिक सेंटर इसका है। तो मैंने ख़रीदी हैं यहाँ से दो पेंटिंग्स भी ख़रीदी हैं दीवार पे लगाने के लिए, और हैंडमेड सेरामिक्स भी हैं। और ये गैलरी है यहाँ पर।
ये भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, पेंटिंग शॉप और एथनिक शॉप और आर्टिज़न शॉप, आर्टिस्टों ने जो अपनी पेंटिंग की हुई है, बनाई हुई है, वो बहुत ज़्यादा है। तो इस शहर का ये पिक्चर है, ये ऐसा शहर नज़र आता है। अभी मैं इन्हीं किसी गलियों में हूँ, ये जो इस पेंटिंग में बनी हुई है, हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ कहीं या इस गली में हूँ। तो जितना पेंटिंग में खूबसूरत लग रहा है तो रियल लाइफ में भी इतना ही खूबसूरत है। बुongiorno, वो पेंटिंग बना रहे हैं, उसकी देखता हूँ। buongiorno, posso vedere un po'? ये हाथ से बना रहे हैं पेंटिंग। Possiamo fare una foto? Sì. Questo per muro. This is for wall? For wall, per muro? Sì, sì. Per Sì, muro. sono quelli fuori Lei è artista che quella dipinge? di questi, sì. ये आर्टिस्ट हैं जो हाथ Sono le tegole, alcune, vedi? तेगुले सी Tegole del questo no, questo è legno, è legno. लेनियो, और ये लेनियो के ऊपर बना रही हैं, लकड़ी के ऊपर हाथ से लाइव पेंटिंग कर रही हैं। तो ये सारी पेंटिंग इनकी बनाई हुई है हाथों की। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं इस शहर में। ये कप के ऊपर, ये तो खैर प्रिंट है, बाकी वो दूसरी डिज़ाइन की हुई है उन्होंने। ग्रासिया। ये बाकी जो है कुछ फ्रिज के ऊपर शो पीस लगाने के लिए। तो वाकई जो है हिस्टोरिकल सिटी भी है, और उसके अलावा एक ऐसा लग रहा है कि अभी हम पेंटिंग में ही हैं, पेंटिंग के अंदर ही मैं चल रहा हूँ। इस तरह की एक फीलिंग और इस तरह का एहसास मुझे हो रहा है। सच ए वंडरफुल एक्सप्लोरेशन। तो बाकी क्रोशिया भी जो है, क्रोशिया जो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ कल्चरली भी बहुत रिच है। और कल्चरल होने के साथ साथ जो इसके बीचेस जो हैं और इसके अंदर हिस्टोरिक सेंटर और अपनी जो ब्यूटी है स्कूजा, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये देखें, ये जो आर्किटेक्चर है, तो मुझे जो है ख़ुसूसन जो है इस तरह के घर पसंद आते हैं जो पुराने बने हुए हों और पुरानी वाइब एक पेश कर रहे हों। ये लग रहा है कि ये 600 से लेकर 400 साल पुराना स्ट्रक्चर है। इतना पुराना तो है घर। और बहुत सारे पत्थर ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं। इस्ट्रिया के जो स्टोन है। अच्छा, यहाँ के जो पत्थर, बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि जिसमें वेनिस के पैलेस बनाए गए, वेनिस की कुछ म्यूज़ियम्स बनाए गए। तो इनकी स्लोप से, उनके स्टेयर केस से ही ऐसा लग रहा है कि 400-500 साल पहले के बने हैं। बाकी स्टूडेंट्स और विज़िटर्स इस शहर को आके एक्सप्लोर करते हैं। खैर अभी मैं इस पेंटिंग नुमा शहर से बाहर की तरफ निकलता हूँ और एक्सप्लोरेशन करता हूँ। फ्रिज के लिए एक मैं सोच रहा हूँ कि ले लूँ ये फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए, या तो किसी को गिफ्ट दे देंगे या तो फिर खुद रख लेंगे। कौन सा मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है, ग्रीन कलर, पिंक या ये ब्लू कलर? रोविंज की याद एक रह जाएगी, इससे पूछता हूँ। Buongiorno, scusa, questo quanto viene? 5 euro। एक मैंने लिया भी है, तो ये इसकी कीमत है छोटे से शोपीस की 5 euro। अभी और देखते हैं, और भी कुछ कोई पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, पेंटिंग पसंद आएगी तो वो लूँगा इस तरह। ये है शहर अंदर से ऐसा दिखता है। अभी इन तमाम गलियों से मैं घूम कर आया हूँ। इस जगह पर मैं मौजूद हूँ कहीं इन गलियों में। 1 euro? वो बहन कह रही हैं कि ये 1 यूरो का पोस्ट कार्ड है। Buongiorno. Questo scusa per grattare, per cosa? Sì, per grattare todo. Can I speak in Yes. English? Because Okay. my Italian is very bad. Oh, no problem, English. You can grate everything. Like you can start with any kind of nuts, chocolate. This is nuts chocolate. And And how to use this?
I'll show you how to use. So this is the very hard nut, nutmeg. Nut. So you just do slowly, alright? Don't apply pressure, And and then in a short time, you have okay, like this. smell. Smell? Very good. This is the aroma you get when you do like a fish coffee. You know? Aroma, beautiful. Same with simple chocolate, anyhow. Also for the For onion, Parmesan, I go and also on my presentation through, so you know all. your presentation. So if I have pasta at home, I leave it at the table so people can add how much they want. We also have very fine Parmesan. Very fine It looks Parmesan. like a decoration on the table. So also they're very famous because of TikTok. Maybe we will also make TikTok for me or Instagram because of garlic. For garlic, Garlic and make also it wet before. It's easy to take it out later. Yes. And what's then your shop name? my shop is written here. One Written second. here. This written here. Yes. What's the name? What's written? Evergrate.de. Evergrate. Evergrate.de. So I show you now how to do the garlic. Where are you from? We are from Italy. Italy. Yes, Okay. from the northern part of Italy. Yes. Do you see if you do it this way? Yes. Never use this one because this is something bitter come out. Okay. It's not the first stomach, yeah. So when you do it that way, it come essential oil of the garlic, and you smell it, yeah. Paste. Yes, Do. I can smell garlic paste. Okay, and then what we do, we always give. 1 second. So this is your We give a brush. product presentation Yeah, the brush you need for taking out from the grater. and make it in pasta or whatever. So looks like a pasta. If you cook with it, I'll show you the result. The result also It's very fine. very fine and very So if you cook, viscous, like a I would liquid. not put it at the beginning, I put it at the end. So the vitamins from the garlic you save. Vitamin don't remains burn. here. You don't burn the vitamins from garlic. No? This is professional presentation. Also you can leave it on the grater Okay. together with brush. Why? If you have a pizza or you have a And how barbecue- much this cost? One piece, one plate? Well, online we sell it for 15, but on the Online. market you get for 10. And you also get the brush. And this is very good quality brush. Good quality. So you bread. also get a recipe book. So it's written everything you can use it for. And online, how we book and someone wants to book? You go online, Yes. but you will pay much more because they have to post, they have package, and here we give a special offer. Okay. So after that you इन्होंने बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन दी है हमें। प्रोडक्ट हाथ से बनाते हैं, सिरामिक्स हाथ से बनाते हैं, तो मैंने ली नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काम की चीज़ थी। हर एक चीज़ कर सकते हैं इससे, जूस भी निकाल सकते हैं और जूस निकालने के अलावा आलियो, अनियन, ककम्बर, हर चीज़ का जूस हर निकाल सकते हैं। तो अभी सेंटर स्टोरिको से मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, इन गलियों से गुज़रता हुआ। द चर्च ऑफ सेंट यूफेनिया। सेंट यूफेनिया एक सेंट है जिनका ये चर्च पीछे बना है और बहुत सेक्रेड और बहुत हिस्टोरिकल, बहुत महज़ब साइट है ये क्रिश्चियन ईसाइयों की। अच्छा, ये चर्च ऐसे बनाया गया है, इस रोविन शहर के बीचों बीच पहाड़ियों के ऊपर बना है और पीछे एड्रियाटिक सी बह रहा है। पीछे एड्रियाटिक सी के खूबसूरत मनाजिर हैं और कहते हैं कि यूरोप का सबसे ज़्यादा जो है गर्म पानी वाला समंदर है वो ये है। और यूरोपियन यूनियन, यूरोप के अंदर जितने भी बीच हैं, सी साइड्स हैं, उसके अंदर ये वाला मारे जो है, ये जो सी है एड्रियाटिक सी, जो कि क्रोशिया के साथ लगता है और इटली के भी साथ। तो यहाँ का पानी बहुत कलरफुल, बहुत खूबसूरत नेचुरल कलर्स और ग्रीन और ब्लू कलर्स का पानी। और यहाँ पर मैक्सिमम जो समंदर का पानी है बाज़ औक़ात ठंडा भी होता है, तो यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी वजह से पूरे यूरोप के लोग यहाँ आते हैं, पोलैंड से, जर्मनी, फ्रांस, मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं। अच्छा, खैर अभी मैं इनके जो सेंट यूफेमिया 1756 में बनाया गया था। अच्छा, वहाँ कर एक डॉज होते थे वेनिस के अंदर, जोवानी दोत्सी,
तो उन्होंने इसको शुरू करवाया था 1756 में ये बन गया था, बल्कि इसको शुरू करवाया 1725 और 1736 में। तो ये बाकी क्रोशियन ज़बान में लिखा हुआ है और इसकी साथ साथ हिस्ट्री लिखी हुई है। चलो अभी मैं इस चर्च के अंदर जाके देखता हूँ। तो वैसे बहुत खूबसूरत है बाहर से भी और अंदर से चर्च ब्यूटीफुल। इसमें भी बारोक आर्किटेक्चर, बारोक स्टाइल नज़र आ रहा है। और इटली में भी बहुत सारे चर्च जो मैंने विज़िट किए हैं, देखे हैं इटली के अंदर। तो वैसे इटली के अंदर ज़्यादा रिच आर्किटेक्चर है। ये भी एक खूबसूरत चर्च है, लेकिन इटली के मुकाबले में थोड़ी खूबसूरती कम है, लेकिन सैक्रेड स्पिरिचुअल साइट, रिलीजियस साइट की वजह से ये भी बहुत मशहूर है। वो हज़रत मरियम नीले रंग के लिबास में खड़ी हैं, हज़रत मरियम मैरी, तो जिन्हें हम भी पाक दामन ख़ातून मानते हैं और ईसाई भी पूरी दुनिया के। तो चर्च बहुत बड़ा है, ये ग्रैंड एरिया पर बना हुआ चर्च है। इबादत करते हैं लोग आगे। मैं भी बस बैठ गया हूँ। इबादत तो एक अल्लाह की है, ईसाई भी अल्लाह की इबादत करते हैं और हम भी। चाइनीज़ बाबा, चाइनीज़ फैमिली, और ये मेरा ख़्याल है जापानीज़ या कोरियन है, वो उनका भी फैमिली ग्रुप टूर आया है। पर सुकून में तो ठंडा माहौल है, चर्च में थोड़ी ठंडा के बाहर गर्मी है। चर्च, सिटी सेंटर, चेंट्रो स्टोरी को विज़िट करने के बाद अभी गर्मी ज़्यादा है, तो प्रोग्राम है मेरा कि समंदर करीब ही है तो ज़रा एक डुबकी लगाई जाए समंदर में भी, ज़रा थोड़ी सी बात, बीच में ज़रा एक छोटा सा बाथ लिया जाए। तो देखते हैं भी नीचे आके कितनी दूर है साहिल की पट्टी, कितना दूर और जाना पड़ेगा। यहाँ से मेरा ख्याल है पहाड़ी के ऊपर हूँ अभी, तो मैं टॉप के ऊपर हूँ, तो लगेंगे कोई 1.5-2 किलोमीटर, 15-20 मिनट लगेंगे। तो पहाड़ी से नीचे उतर के मैं पहुँचूँगा फिर बीच वाली साइड पर, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। तो उधर जो है नहाएंगे तो फिर थोड़ा फ्रेश होंगे। बाकी ये चर्च मैं देख रहा हूँ और ये मुख्तलिफ़ सीन्स हैं। ये इस सीन्स के बारे में तो अभी मुझे इसकी हिस्ट्री और इसकी इंटरप्रिटेशन मतलब नहीं पता, लेकिन एक ये सीन बयान करता है कोई स्टोरी। और ये साथ में लेफ़्ट राइट पेंटिंग्स, ये मशहूर आर्टिस्ट जो गुज़रे हैं 17, 16, 18 सेंचुरी में, तो उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स रखी हुई यहाँ पर। तो ये भी एक किस्म से इनका एक बेनी है, क्या कहेंगे इसको, जायदाद है। ये भी लाखों यूरो मालियत इनकी कीमत है। बाकी मार्बल जो है, मार्बल बहुत खूबसूरती के साथ काम करके बनाया हुआ उसका। और ये जो है इस तरह का डिज़ाइन, ये बारोक आर्किटेक्चर, बारोक डिज़ाइन है। तो चर्च जो है अपनी मिसाल आप है हर जगह।